How are you? I hope you all are doing good. Okay? So, today our topic is paragraph writing. Today, you are going to learn how to write an effective and good paragraph. So, first of all, you should know that what is paragraph writing. So, when it comes to paragraph writing, see, a paragraph is a group of sentences that describe or explain a topic or idea. पैराग्राफ क्या है? ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है जो टॉपिक को, उसके मेन आइडिया को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, राइट? बट ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, कई सारे सेंटेंसेस एक साथ मिलके एक पैराग्राफ बनाते हैं, बट वो सेंटेंसेस इररेलेवेंट नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए. जो मेन आइडिया आपके पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में जो आपने लिखा है इंट्रोड्यूस करते हुए पैराग्राफ को, उसी को एक्सप्लेन करता है बाकी का सारा पैराग्राफ. और लास्ट की 1 और 2 लाइन जो होती है, दैट इज़ द कंक्लूडिंग सेंटेंस. उसमें आप पैराग्राफ को कंक्लूड करते हो वापस से, और जो आपने मेन फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस अब फर्स्ट लाइन में लिखा था पैराग्राफ के, उसी को आप समराइज करके लिखते हो कि हाँ, आपने जो शुरू में लिखा उसका एक्सप्लेनेशन दिया, फिर उसी को कंक्लूड किया कि हाँ, ये देखो ये हो गया, राइट? you'll get to know more clearly. Each sentence in a paragraph must be in the right order. Sequencing बहुत important है पैराग्राफ राइटिंग में. ऐसा नहीं है कि आप इनिशियल कुछ और लिख रहे हो फिर बाद में कुछ और लिख रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग. राइट ऑर्डर में होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए और राइट ऑर्डर में भी होनी चाहिए. सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंसेस is very 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 important. Okay, then the format of paragraph writing is first the topic sentence, then the supporting ideas, then you should add details to it, and then concluding sentence. So there are basically 3 parts of a paragraph, that is, first is topic sentence, second is supporting ideas, and third is concluding sentence. Adding details is the part of supporting ideas, because जो ideas आप support कर रहे हो उसके बारे में details भी देना है आपको, right? So paragraph writing is all about this only. सबसे पहले आप topic sentence लिखते हो, उस topic sentence को support करते हुए कुछ sentences लिखते हैं, that are supporting ideas, फिर उनका detail add करते हैं, that is adding details, फिर इन सबको conclude करते हैं, that is the concluding sentence. Okay, you should not repeat the ideas again and again. I am telling you, you should not repeat the ideas. Okay, then parts of a paragraph, as I've already told you, parts of a paragraph. The first part is the topic sentence. This sentence tells the reader the main idea or what the paragraph will be about. पैराग्राफ किसके बारे में है, पैराग्राफ लिखने का मेन आइडिया क्या है, मेन पर्पस क्या है, वो आप टॉपिक सेंटेंस में लिखते हो. एंड रिमेंबर, टॉपिक सेंटेंस में हमेशा पैराग्राफ का जो नाम होता है, जो टॉपिक होता है, वो ज़रूर इंक्लूड होता है. दैट इज़ अ मस्ट. वही आपका गुड टॉपिक सेंटेंस है अगर आपने पैराग्राफ का नाम उसमें इंक्लूड करके लिखा है. Then see here in the format also, in the parts also, it is written supporting sentence 1, supporting sentence 2, supporting sentence 3. Minimum 3 supporting sentences are required. This sentence gives specific details relating to the main idea. जो main idea आपने topic sentence में दिया, उसी से related details आप दोगे supporting sentence में. But since आप class 2 में नहीं हो, आप क्लास 4 में हो, तो आपको जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने हैं वो 3 नहीं लिखने हैं, 3 से ज़्यादा लिखने हैं, मोर देन 3. इसीलिए मैंने एडिंग डिटेल्स ऐड किया है. यू हैव टू ऐड डिटेल्स टू द सपोर्टिंग आइडियाज़. ओके, एटलीस्ट 5 to 6 lines should be there in the supporting ideas, at least. Okay, then
concluding sentence. This sentence refers to the topic sentence and sums up the main idea of the paragraph. जो paragraph का main idea है उसकी summary होती है ये, उसको sum up करके आप एक sentence में conclude करते हो. जो आपने sentence पूरा paragraph में जितने sentences लिखे हैं, जो details लिखे हैं, उसी से related होता है ये. उसको आप sum up करके फाइनली अपने ही जो मेन आइडिया था उसको आप बोलते हो हाँ, उसी को प्रूव करते हो कि हाँ वही सही था, उसी को रीस्टेट करते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस में. ओके, नाउ योर पैराग्राफ शुड इंक्लूड peels. Now what is peels? See, P stands for point, E stands for evidence, another E explanation, L link, S style. Okay, please remember it. Peels. Your paragraph should include peels. P is a main point. जब टॉपिक सेंटेंस में लिखते हो मेन पॉइंट, मेन आइडिया, वो आपके पैराग्राफ में ज़रूर होना चाहिए. ई एविडेंस, उसका एविडेंस मतलब प्रूफ, उसका एविडेंस भी दो आप, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स भी दो. सो एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर मेन पॉइंट. आपका जो मेन पॉइंट है उसको सपोर्ट करते हुए एविडेंस देना, उसको सपोर्ट करते हुए एग्जाम्पल्स देना, उसका डिटेल देना. is now detail is an explanation. The third one, that is second E, explanation of your evidence. आपके एविडेंस को एक्सप्लेन करना है आपने, और एक्सप्लेन करते हुए क्या लिखना है, जो भी आपने प्रूफ दिया कि वो क्यों है और कैसे है. एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एविडेंस, हाउ एंड वाई इट सपोर्ट्स योर मेन पॉइंट, कि आपने जो प्रूफ दिया है वो किस तरीके से आपके मेन पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है. देन रिमेंबर लिंक, दैट इज़ द ट्रांजिशन. आपका जो पिछला सेंटेंस होता है वो आने वाले सेंटेंस से लिंक्ड होना चाहिए, उन दोनों का कनेक्शन होना चाहिए. ऐसे ही लॉस्ट कोई भी सेंटेंस कभी भी नहीं लिख दोगे आप. ओके, एंड स्टाइल, अ फॉर्मल स्टाइल थ्रू आउट. जो आपका पैराग्राफ राइटिंग का स्टाइल है उसको फोकस करते हुए लिखना है. पहले टॉपिक सेंटेंस, फिर कुछ थोड़े से सपोर्टिंग सेंटेंसेस, फिर थोड़ा डिटेल उनके बारे में, देन कंक्लूडिंग सेंटेंस. सो दिस इज़ द स्टाइल. सो कीप स्टाइल इन माइंड. सो यू हैव टू फॉलो दिस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट. ओके, जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप पील्स को दिमाग में ज़रूर रखना. Now points to remember, we'll just do a recap. You should not repeat the ideas. आपको ideas को repeat नहीं करना है. Topic sentence should include the name of the topic. Topic sentence में topic का नाम ज़रूर included होना चाहिए. Supporting sentences includes facts, descriptions and examples that support the topic sentence. जो supporting sentence होता है उसमें facts और descriptions include होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं उसका डिटेल देना. जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया कि एक्सप्लेनेशन देना, उसका जो आपने एविडेंस देना, प्रूफ देना, आपके टॉपिक सेंटेंस का प्रूफ देना और उसको एक्सप्लेन करना. ओके, वो आपका पूरा काम सपोर्टिंग सेंटेंसेस में. यू हैव टू डू दैट. यू हैव टू इंक्लूड द फैक्ट्स, यू हैव टू डिस्क्राइब इट, यू हैव टू सपोर्ट योर टॉपिक सेंटेंस. ओके, देन द कंक्लूडिंग सेंटेंस कंफर्म्स एवरीथिंग मेंशन्ड इन अ पैराग्राफ. जो भी आपने पैराग्राफ में मेंशन किया है वो आप कंक्लूड करते हो और उसको समराइज करके आप कंक्लूडिंग सेंटेंस में बेटा आपको लिखना है. ओके, इट यूजुअली रीस्टेट्स. ज़्यादातर केसेस में कंक्लूडिंग सेंटेंस में आप वही आइडिया को रीस्टेट करते हो दूसरे वर्ड्स में जो आपने टॉपिक सेंटेंस में क्लेम किया था. जो आइडिया जो टॉपिक सेंटेंस में मेंशन किया था इनिशियली, उसी को रीस्टेट करते हैं कि हाँ, कंक्लूड करके हाँ देखो ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ऐसा होता है. Avoid using irrelevant information.
चिल्ड्रन, डोंट यूज़ इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. आपकी इन्फॉर्मेशन आपके टॉपिक, जो पैराग्राफ का टॉपिक है, उससे रिलेटेड ही होनी चाहिए. ओके, नाउ हियर इज़ एन एग्जाम्पल. My family. See, the topic sentence is in this paragraph is, I have a wonderful family whose members greatly love each other. तो आप ये स्टेट कर रहे हो कि आपके पास एक फैमिली है जिसके मेंबर्स एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं. फिर उसका डिटेल, आपने फैमिली का डिटेल दे दिया. माई फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली विद 4 people, वी रिस्पेक्ट ईच अदर. ओके, सारी डिटेल्स हैं. Then the last conclusion, see, I have a very happy family and I love my family. So last, I have a very happy family, conclude कर दिया कि मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है एंड मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ. I love my family. आपने यहाँ पे लिखा था फैमिली वंडरफुल है, तो ऑब्वियसली जब फैमिली वंडरफुल है आपने इसी आइडिया को रीस्टेट किया दूसरे वर्ड्स में कि आई लव माई फैमिली. ओके, and this is just an example. Kindly read it, kindly go through this example. It is just an example. Please don't copy down this example, just read it. Okay, read it. See, I have a wonderful family. I'll read it for you. Whose members greatly love each other. My family is a small family with 4 people. We respect each other. My name is Manu. I read in class 4. My father is quite supportive and always encourages us. He is an army personnel. My mother is very smart and wise. She is a homemaker. She looks after us. I have an elder sister. She reads in class 7. I have a very happy family. I love my family. Okay, so it is an example paragraph. Please don't copy down it. You don't have to write it somewhere. Just, it's an example. Okay, I hope paragraph writing, it is clear that how to write a good paragraph. Thank you, children. Have a nice day.